Hello and welcome to the Samat Academy. So, first of all, I would like to wish you a very happy Diwali to all of you. दिवाली के दिन हमने ये सेशन रखा बट नेवर माइंड. सो आप लोग में से अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा. आप रिकॉर्डेड सेशन भी व्यू कर सकते हैं. सो वी शैल स्टार्ट आवर टॉपिक, that is preparation and working of GSTR1 written from Tally ERP9 or Tally Prime. So first हमने जो लाइव सेशन किया वहाँ पे हमने Tally ERP9 में देखा. So but Tally ERP9 and Tally Prime में मैकेनिज्म एंड वर्किंग स्टाइल सेम है. तो हम इस सेशन में Tally Prime पे कैसे रिटर्न फाइलिंग करना है, GSTR1 डेटा कैसे प्रिपेयर करना है, हम वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So, what are the topics that we are going to cover? We are going to see GST return for regular dealer. कौन कौन से रिटर्न्स है जो एक रेगुलर डीलर रिटर्न फाइल करता है. What is GSTR1? GSTR1 होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Table wise GSTR1 contained हर एक GSTR1 के कौन कौन से टेबल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं, क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल होते हैं. प्रिपरेशन ऑफ GSTR1 दैट विल सी सम एरर एंड करेक्शंस. दैट इज जब हम टैली स्टार्ट करेंगे सो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ clerical error, some kind of tally error. So we will see how to rectify, how to correct all such errors in Tally ERP9 or you can say Tally Prime. Process of GSTR1 written from Tally, that is how can we prepare data, how can we prepare our backup file, how can we proceed for our filing returns. So all the things that we are going to look after in this current session or you can say video. Post return amendment, yes, there is a provision called amendment of invoices that you can amend if you need according to your requirement. See, there are some cases जहाँ पे हमें कभी कभी इनवॉइस को अमेंड करने या फिर उसके रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है. So we can use debit note and credit note, but there are cases where we can amend our invoices without raising debit note or credit note. So what are those cases that we will definitely discuss in coming video. And later on we will discuss do's and don'ts and FAQ सेशन. FAQ सेशन अगर हुआ तो हम यहीं पे कवर करेंगे. FAQ सेशन अगर यहाँ पे नहीं हुआ so my contact detail is available with you, so you can directly contact me over there at any point of time. It is not for that आज ही contact करो, आप in future कभी भी कुछ भी query है so I am available to help you out. So let's start. What are the types of return that a regular dealer have to file? एक रेगुलर डीलर को नॉर्मल टैली रिटर्न जीएसटी रिटर्न कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं बेसिकली फाइल करने होते हैं. तो सबसे पहले जो रिटर्न फाइल होता है वो होता है GSTR1. GSTR1 मंथली और यू कैन से क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है. अब मंथली एंड क्वार्टरली इसके दो अलग अलग पीरियड है बेस्ड ऑन योर टर्नओवर. Based on your turnover, either you can go for GSTR1 monthly return by 11th of every month, or you can say if it is your turnover is below the specified limit, then you can offer quarterly return. Let's say today's turnover limit is 5 CR. 5 CR called 5 crore. If you are having less than that, then आप you can say आप इसको फाइल कर सकते हो quarterly or you can file monthly. So GSTR1 होता क्या है, we will discuss. And the next return is GSTR3B, that is monthly you have to file by 28th, that is 2028 or 22nd depending upon your state, because हर एक स्टेट का GSTR मंथली फाइल करना है, 3B मंथली ही फाइल करना है, बट उसका ड्यू डेट डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट अप्लीकेबल है. लेट्स से इफ यू आर इन महाराष्ट्र, डेफिनेटली आपको ये महाराष्ट्र में 20th को पे करना है. एंड GSTR3B क्या होता है, इसका सेशन हम अलग सेशन करेंगे जहाँ पे हम GSTR3B रिटर्न फाइलिंग कैसे करना, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, पूरी की पूरी चीज़ें हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट
we are coming on GSTR once again. What is GSTR1? GSTR1 is something that include invoice wise detail of your outward supply, यानी कि आपने आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आउटवर्ड सप्लाई किया, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, उसकी डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड करना, डिक्लेयर करना, दैट इज with the help of GSTR1. That is called GSTR1 return filing. So GSTR1 is something that you have to upload all the invoices that you made sales. Let's say आपने कोई सेल किया है तो उसका इनवॉइस डिटेल आपको GSTR1 पे डिक्लेयर करना पड़ेगा. So it means you are just declaring your returns, that is you are just declaring your invoices कि मैंने क्या क्या सेल किया, मैंने क्या क्या ब्रांच ट्रांसफर किया, एंड हु आर दोज पार्टी, या फिर अगर ये B2B केस हुआ तो B2B केस में किसको मैंने सप्लाई किया, B2C में हुआ तो कौन से स्टेट में सप्लाई किया. सो ये सारी चीज़ें हम जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वो कहलाता है GSTR1 रिटर्न फाइलिंग, जो कि हमें हर महीने या फिर क्वार्टरली फाइल करना होता है. देन जो दूसरी रिटर्न होती है वो GSTR3B रिटर्न होती है, जिसमें हमें मंथली समरी ऑफ मेरे आउटवर्ड सप्लाई प्लस मेरा इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज एंड एक्सपेंसेस. तो आउटवर्ड एंड इनवर्ड जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो वी हैव टू फाइल इन GSTR3B. सो GSTR1 में वी हैव टू जस्ट डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाई, वेयर एज GSTR3B में हमें समरी ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड, एंड देन आफ्टर नेट टैक्स लायबिलिटी हमें डिसबर्स करनी होती है, यानी कि हमें टैक्स भी पे करना होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR3B रिटर्न. तो GSTR1 में हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट GSTR3B में वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ tax along with the declaration of outward supply and inward supply in summary format. So these are the two main returns. इसके अलावा क्या क्या चीजें होती है, इसके अलावा होता है GSTR2. ये GSTR2 फिलहाल अभी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, पोर्टल से निकाल दिया गया है, बट इनिशियल लेवल पे there was a return called GSTR2. GSTR2 it is just opposite to GSTR1. GSTR1 में जहाँ पे आपको सारे के सारे आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करने होते थे, GSTR2 में आपको इनवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करने होते थे, बट GSTR2 अब फिलहाल आज के दिन में है नहीं, अवेलेबल नहीं, इट इज नॉट अप्लीकेबल, तो हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट there is a one statement, one auto populated report called GSTR2A. It is not a return, but this is important one. अब ये GSTR2A क्या होता है? GSTR2A is auto populated report of all your purchases that you have done from a registered regular dealer. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो सिंपल ये बात हो गई कि आपने ऐसे एक्सपेंसेस या फिर ऐसे परचेज ऑफ गुड्स जो आपने परचेज किए हैं सामने वाली पार्टी से जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो रेगुलर डीलर है, तो आपने जो भी परचेज किया है सामने वाला जब रिटर्न फाइलिंग करेगा अपना GSTR1, as soon as he will file GSTR1 अपना, तो that invoices will be visible under your GSTR2A. तो वो GSTR2A में आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड रिफ्लेक्ट करेगा. सो इट मींस योर सप्लायर हैज फाइल्ड देयर GSTR1. नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंसेस. सो आपने जो परचेज किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये भी है साथ साथ में कि आपके सप्लायर ने उसका GSTR1 अपलोड किया और वो इनवॉइस आपके पोर्टल पे विजिबल हो रहा है. एज सुन एज ये विजिबल होगा तो यू आर रेस्ट एश्योर कि हाँ मेरा इनवॉइस मेरे पोर्टल पे दिख रहा है, इट मींस आई कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट आराम से. सो अगर उसने अपलोड नहीं किया तो क्या होगा? सो देयर इज अ रूल कॉल्ड ITC ब्लॉकेज रूल, जिसमें 36(4) ये कहता है, यानी कि सेक्शन 36(4) ये कहता है कि अगर आपका सप्लायर इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर रहा है तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन मींस एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में यानी कि आपके टैली में आपने परचेस दिखाया टैक्स अमाउंट 1000 रुपए, 1000 रुपए टैक्स अमाउंट, मैं परचेस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल टैक्स अमाउंट की बात कर रहा हूं. आपने जो परचेस किया उसमें 1000 रुपए का टैक्स अमाउंट आपका बुक शो कर रहा है, बट आपने जब GSTR2A चेक किया फॉर पर्टिकुलर मंथ तो आपने ये देखा मेरे GSTR2A में जो मेरे परचेस 1000 रुपए का होना चाहिए था, बट वहां पे तो सिर्फ
100 रुपीज, यानी कि 800 रुपए दिखाई दे रहे हैं। अब ये 1000 होना चाहिए था, लेकिन वो 800 दिखाई दे रहे। तो 800 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 200 रुपए का जो मेरा टैक्स अमाउंट है वो किसी ने किसी सप्लायर ने रिटर्न डिक्लेयर नहीं किया है, GSTR1 फाइल वो लोग ने नहीं किया। वो किसने किया, वो हम लोग को स्टेटमेंट रिकंसाइल करके आइडेंटिफाई करना होता है, सो दैट वी कैन ट्रैक डाउन दैट पर्टिकुलर सप्लायर कि भाई आप टाइम पे फाइल नहीं करते हो, एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। एक्चुअली इसमें क्या रूल दिया हुआ है, रूल के मुताबिक you can claim input tax credit maximum of 110% GSTR2A value. It means आप GSTR2A में जितना अमाउंट दिख रहा है वो 110% में मल्टीप्लाइड कर लो, यानी कि 800 को मल्टीप्लाइड बाय 110%, दैट बिकम्स 880 रुपीज, यानी कि 880 रुपए। It means either you can claim 880 rupees or 1000, whichever is lower, because आपके GSTR2A में जितना दिख रहा है उसका 10% उसमें प्लस कर दो, एंड आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के टैक्स अमाउंट को कंपेयर करो, दैट इज 1000, तो विच एवर इज लोअर दैट इज 880 रुपीज, दैट मच अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स दैट यू कैन क्लेम इन योर फाइलिंग GSTR3B रिटर्न। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया 880 रुपए का ही इनपुट टैक्स मिलेगा, तो 120 रुपए कहाँ चले गए, 120 रुपए कहीं नहीं गए। यू हैव टू वेट फॉर 120 जब तक कि आपका सप्लायर वो फाइल नहीं कर देता है। इट मीन्स यू हैव टू ट्रैक डाउन ऑल दो सप्लायर हु आर नॉट फाइलिंग देयर रिटर्न्स ऑन टाइम। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि GSTR2A इंपॉर्टेंट क्यों है। GSTR2A इंपॉर्टेंट है so that you can reconcile all those invoices which is available in portal, to reconcile with your books of account, to identify कि मेरा supplier return time पे file कर रहा है या नहीं कर रहा है, or else we have to make sure कि हमारा input tax हमें जो दिख रहा है उसके accordingly working करना है, and उतना ही हमें input tax claim करना है, or else ये ऑडिट के टाइम पे क्वेरीज उठेंगे एंड डेफिनेटली हमें जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बेयर करने होंगे। So GSTR2A के अलावा there is one more report from GST portal that is recently launch किया हुआ है जुलाई 2020 में, that is GSTR2B. It is not a return actually, this is auto populated reconciliation statement. It is similar to GSTR2A, ये भी GSTR2A की तरह ही है but with some additional options. एडिशनल ऑप्शंस इसमें जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो इफ यू आर इम्पोर्टर, अगर आप इम्पोर्टर हो तो आप गुड्स जो परचेस करते थे फॉरेन सप्लायर से, ही इज नॉट गोइंग टू फाइल हिज GSTR1 बिकॉज वो तो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है। बट जो भी गुड्स लैंड करता है कस्टम वहाँ के यहाँ पे, तो कस्टम से आपको बिल ऑफ मटेरियल मिलता ना, बिल ऑफ मटेरियल विल बी अपलोडेड from their side custom department and that will be visible under GSTR2B. तो GSTR2A में वो नहीं दिखेगा, but GSTR2B में you will be able to identify, अच्छा ये मेरा import of goods भी मुझे पोर्टल पे दिख रहा है। So GSTR2A and GSTR2B you have to reconcile every month before filing GSTR3B return. So monthly ये activities होती है where we have to file GSTR1, GSTR3B with the liability tax, and at the same time we have to reconcile GSTR2A and GSTR2B बिफोर फाइलिंग आर GSTR3B रिटर्न। तो 11 से लेके 20 के बीच में हमें 9 दिन की टाइम मिलता है, 9 दिन के अंदर हमें रिकंसाइल करना होता है। तो आप सवाल आता है कि मैं GSTR2A जब डाउनलोड कब करूं, बिकॉज 11 तारीख को मेरे सप्लायर ने फाइल कर दिया, लेकिन कुछ सप्लायर 12 तारीख को भी फाइल कर सकते हैं, कुछ 13 को भी कर सकते हो। इट इज बेटर कि आप 16th ऑफ द मंथ GSTR2A जनरेट करो, वो कट ऑफ रखो। इफ यू आर श्योर कि नहीं मैं एक दिन के अंदर आराम से कर सकता हूँ तो मेक इट 18। तो सो दैट यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरा जो रिटर्न फाइलिंग करने का ड्यू डेट मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है एंड रिकंसिलिएशन मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। So these are the return or reconciliation statement that a regular dealer has to file or have to reconcile with the books of account. So अगर बात करूँ next, तो टेबल वाइज GSTR1 डिटेल वी विल सी, हम लोग GSTR1 रिटर्न फाइलिंग ही देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे सेशंस में। सो इस सेशन में हम लोग मूव करें उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज GSTR1 इंफॉर्मेशन, यानी कंटेंट क्या क्या है GSTR1 के अंदर, कौन कौन से टेबल है और हर एक टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हर एक टेबल का इंपॉर्टेंस यानी कि ये टैली का ही मैंने पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो बिफोर मूविंग टू एनी पार्ट जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस जो सीरियल नंबर है 1 to 9,
ये सारे के सारे पोर्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे कौन कौन से इंफॉर्मेशन फिलअप होती है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर फिट होनी चाहिए. सो point number one, that is B2B invoice. B2B invoice, you can see that name B2B called business to business. Okay, so if you are supplying any goods or service to a party who is already registered under GST, it means you are supplying your goods from one part GST register holder to another GST holder. This is called B2B supply. It doesn't matter within your state or within outside state, whether it is in your state or outside state, it is B2B. So जो भी सप्लाई आप करते हो विद इन सेम स्टेट या फिर दूसरे स्टेट में जहाँ पे आपके आप तो रजिस्टर हो ही जीएसटी में, सामने वाली पार्टी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये B2B इनवॉइसेस कहलाता है. सारे इनवॉइसेस जो बुक करोगे आप टैली में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा अंडर B2B इनवॉइसेस. एंड यहीं पर एक सवाल आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है. अब वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज वो थियोरेटिकल पार्ट का एक डिटेल इंफॉर्मेशन है. थियोरेटिकल पार्ट यानी कि हमारा पूरा का पूरा एक जीएसटी थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर हमने पूरा का पूरा 12 to 15 आवर्स का पूरा एक अलग सेशन क्रिएट किया हुआ है. आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो. सो आज के दिन शायद वो पब्लिश नहीं होगा, लेकिन वो अंडर पब्लिश है, वो भी जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर वो पब्लिश हो जाएगा. सो वो उसमें हमने पूरा का पूरा दैट इज 12 आवर्स के अंदर हमने पूरा हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक पार्ट को, चाहे वो आईटीसी पार्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट पार्ट हो. और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक अकाउंटेंट को, एक ऑफिस स्टाफ को, एक जो बुक कीपिंग वाला बंदा है या फिर जो पर्सन है इंचार्ज है वहाँ पे, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते, ये पूरी की पूरी समरी हमने वहाँ पे 12 घंटे के अंदर पूरे सेशन में हमने कवर किए हुए. आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो. तो B2B में ही एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन यानी कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर स्टेट के लोकेशन में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिफाइन करते हैं. जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात कर लो, मुंबई की बात कर लो, मुंबई में अंधेरी ईस्ट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया है, तो पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है. लेट से अब मैं, मेरा ऑफिस अगर लेट से मैं मुंबई में हूँ, वहीं पे मैं अंधेरी वेस्ट में मेरा ऑफिस एग्जांपल, और अंधेरी ईस्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ या फिर मैं कोई सर्विस देता हूँ, बट वो पर्टिकुलर उस जोन में आता है. तो अब ऐसे केसेस में मैंने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया या फिर मैंने जो सर्विस दी है वो विद इन सेम स्टेट है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि CGST SGST चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई. नहीं, इस केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है. भले ही आपके सेम स्टेट में हो, तो इनकेस यू हैव टू चार्ज IGST, हालांकि चार्ज करना है लेकिन सामने वाले पे नहीं करेगा. वो आपको आइदर LUT बॉन्ड के थ्रू आप एग्जाम दिखा सकते हो उसको, या फिर आप टैक्स पे करके गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हो, दैट डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस. तो ऐसे केसेस में विद इन सेम स्टेट में अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल करते हो तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, वो दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई कहलाता है. इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि एक तरह का एक्सपोर्ट ही हो गया, बट वो एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट टैब में नहीं जाएगा. यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 एक्सपोर्ट टैब में नहीं आता है, वो भी यहीं पर आएगा, B2B इनवॉइस के टैब में ही दिखेगा. इट मीन्स यहाँ पे वो इनवॉइसेस देखेंगे जो नॉर्मल B2B है, चाहे वो विद इन सेम स्टेट हो या इंटर स्टेट हो. अलॉन्ग विद दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी जो भी आपने इनवॉइसेस रेज किया है वो भी आपको B2B के इनवॉइस के टैब में ही दिखेंगे. So point number 1 is clear. Now we are moving to point number 2, that is B2C. B2C, B2C, there are two things, B2C small and B2C large. अब B2C small and B2C large. First of all, before large and small से पहले B2C मतलब कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर. अच्छा, आप यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब वो होता है जो कि आइदर उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को कंज्यूम करता है. आप जब टैली में आपने देखा होगा, आप जब पार्टी मास्टर क्रिएट करते हो तो वहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि टाइप ऑफ पार्टी, यानी कि अदर रेगुलर डीलर है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है,
या फिर ट्रांसपोर्टर है, ये टाइप्स पूछता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि B2C मतलब वो पार्टी जिसने जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। अब मैं बोलूँ कंज्यूमर, अगर एग्जांपल आप कंज्यूमर है, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे, मोबाइल आपने परचेज किया पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो यू आर कंज्यूमर, तो आपके पास तो डेफिनेटली जीएसटी नंबर होगा ही नहीं। अब जीएसटी नंबर होगा ही नहीं, तो ऐसे केस में बिजनेस जो सप्लाई करेगा, ऐसे केसेस में वो B2C सप्लाई कहलाएगा। लेकिन B2C सप्लाई में एक चीज आती है, एक ऐसी छोटा सा बिजनेस जो प्रोडक्ट आपसे परचेज करता है और आगे रीसेल करता है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। ही इज नॉट कंज्यूमर because he is just purchasing some goods or services from you and delivering it to another person. It means वो छोटा सा बिजनेस लेके बैठा है, उसका टर्नओवर इतना नहीं है, वो छोटा सा शॉप चलाता है और एग्जांपल के तौर पे लोकल एरिया में आपसे परचेज करता है, किसी और को सेल करता है, बट उसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि वो जीएसटी में जाके रजिस्टर्ड करे। सो ऐसे केसेस में ही इज अ डीलर, whether it is local or interstate, I'm just giving an example, he is a dealer। तो वो डीलर है, वो बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को कंज्यूम नहीं कर रहा है बल्कि रीसेल कर रहा है। सो ही इज कॉल्ड अनरजिस्टर्ड डीलर, कंज्यूमर नहीं, वो ही इज अनरजिस्टर्ड डीलर। अब ऐसे पार्टी को भी अगर आप सेल करते हो या सप्लाई करते हो तो भी ये B2C ही कहलाता है, बिकॉज द रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस इज not having GST registration detail. So as per government rule कि जब उसके पास GST डिटेल है ही नहीं, so ultimately it will be treated as he is the ultimate consumer of the goods। और वो जब बिकॉज आगे किसी को बेचेगा तो वो GST तो चार्ज कर ही सकता है, तो डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्ट वहीं पे ही कंज्यूम कर लिया जाएगा। टैक्स का जो चेन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो चेन वहीं पे जाके एंड हो जाता है। सो B2C स्मॉल एंड B2C लार्ज की बात करते हैं। पहले हमने B2C समझ लिया, अब B2C स्मॉल एंड B2C लार्ज क्या होता है। B2C स्मॉल वो होता है जब आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि अनरजिस्टर्ड है या फिर कंज्यूमर है, और आपने प्रोडक्ट सेल किया, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, यानी विद इन सेम स्टेट हो या फिर आउट ऑफ स्टेट हो, बट आपने जो सेल किया है उसके इनवॉइस की वैल्यू इफ इट इज 2.5 lakhs and below, then it is called B2C small। फिर से आपने लेट्स से मुंबई टू पुणे, that is within same state, Mumbai to Pune, you supplied some goods to party who is not having GST registration number, it means, and the value of the goods is below 2.5 lakh along with the tax, then it is called as B2C supply, and that is B2C small। So in such cases, B2C small cases, we have not to declare each and every invoice on GST portal, but we have to declare state-wise summary, state-wise summary of all the supplies। यानी कि हमने जितने भी स्टेट को, अलग अलग स्टेट को, लेट्स से फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद, दैट इज महाराष्ट्र टू तेलंगाना, वी सप्लाइड समथिंग, इट मीन्स वी हैव टू डिक्लेयर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर कितना सप्लाई किया B2C स्मॉल, दिल्ली के अंदर कितना सप्लाई किया, तेलंगाना के अंदर, ऑन द समरी बेसिस, नॉट फॉर ईच इनवॉइस, हमें हर एक इनवॉइस का नहीं बल्कि समरी बेसिस हमें हर एक स्टेट वाइज B2C स्मॉल का अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमने किस स्टेट को कितना सप्लाई किया। सो दिस इज B2C स्मॉल। बट B2C लार्ज, what is B2C large? B2C large is a terms and condition where जहां पे इनवॉइस की वैल्यू इज अबाउट 2.5 lakhs but with a star mark, star mark, this is star mark called एक 2.5 lakh के ऊपर, right, plus the consumer or the buyer will be from different state, यानी कि interstate, that should be an interstate transaction having 2.5 lakh and above invoice value, but the recipient should not have GST registered number। Example, आपने मुंबई से कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया अहमदाबाद, अहमदाबाद कांजी एंड भाई कंपनी, बट कांजी एंड भाई कंपनी जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, उनके पास GST नंबर नहीं है, आपने कुछ 3 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, तो ऐसे केस में आपने जो सप्लाई किया वो तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और ये 3 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कहलाएगा B2C लार्ज। B2C लार्ज, यहाँ पे समरी वाइज नहीं, यहाँ पे अपने को इनवॉइस वाइज डिक्लेयर देना
पड़ेगा। अगर यही कांजी भाई ने अगर 2,20,000 रुपए का माल मंगाया होता मुंबई टू अहमदाबाद 2,20,000 रुपए का, तो ये 2.5 लाख रुपए से नीचे था, तो इस केस में ये B2C स्मॉल काउंट होता, ना कि बल्कि B2C लार्ज। So I hope you are clear with B2C small, B2C large. Point number 4, credit debit notes for registered dealer. It means आपने जो पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे B2B सप्लाई किया है, B2B सप्लाई के रिलेटेड अगर कोई भी डेबिट नोट या फिर कोई भी क्रेडिट नोट अगर आप रेज करते हो, कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर आपने रेज किया रिलेटेड टू B2B सप्लाई, that will be recorded under point number that is 4, credit note debit note registered under table number 9B for registered. So point number 1 के लिए अगर कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो यहाँ पे रेज हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा. And there is one more option for credit note debit note for unregistered. Unregistered it is for point number 2, that is B2C large. वही जो आपने कांजी भाई को 3 लाख रुपए का माल बेचा था मुंबई टू अहमदाबाद, 3 लाख रुपए का माल बेचा था, अगर वो जो B2C लार्ज था इनवॉइस, अगर उसके रिलेटेड कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट हुआ तो वो पॉइंट नंबर 5 यानी कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में रहेगा. सो क्रेडिट नोट फर्स्ट जो 4th पॉइंट का इट इज रिलेटेड विद पॉइंट नंबर 1 एंड जो क्रेडिट नोट 5 नंबर का इट इज रिलेटेड विद पॉइंट नंबर 2. तो इसका क्रेडिट नोट कहाँ गया? B2C स्मॉल का. अगर इसका क्रेडिट नोट आया तो इसका कहाँ जाएगा? तो मैंने पहले ही बताया कि B2C का था अपने को इनवॉइस वॉइस डिटेल नहीं देनी होती है. B2C स्मॉल केसेस में हमें समरी स्टेट वाइज समरी डिक्लेयर करना होता है. इन सच केसेस समरी में क्या होता है? नेट टैक्सेबल. आपने सेल किया 1000 रुपए का, 100 रुपए का आपका रिटर्न हो गया, तो नेट अमाउंट इज 900 अमाउंट यू हैव टू डिक्लेयर ऑन द पोर्टल. So it means if any credit note or debit note related to B2C small, that will be adjusted, that will be automatically adjusted in the net value, and credit note debit note should not appear in separate table for B2C small. Credit note debit note should appear separately for B2B invoices and B2C large invoices only. Point number 6, export invoice. Export invoice table number 6A, under 6A. So export invoices are those invoices which have been supplied out of territory of India. अब मैं इंडियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक कंट्री से हमने दूसरे कंट्री में कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया. एक कंट्री मतलब इंडिया से बात कर रहा हूँ. इंडिया से बाहर हमने कभी कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, इंडिया का जोग्राफिकल कंट्री से बाहर सप्लाई किया, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहलाता है. तो एक्सपोर्ट के केसेस में भी IGST एप्लीकेबल है, बट देयर आर ऑप्शन कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप एक्सपोर्ट के केसेस में आप क्या IGST चार्ज करके आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, बाद में वो पैसा आप गवर्नमेंट से रिफंड के तौर पे भी क्लेम कर सकते हो, वेदर इट इज सर्विस या फिर इट इज गुड्स. एज पर रूल के हिसाब से यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स. वो चीजें हमने अलग GST थियोरेटिकल पार्ट में कवर किया है. तो अगर आपने LUT बॉन्ड ले लिया या फिर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया है, तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स चार्ज करने की जरूरत भी नहीं और ना ही रिफंड क्लेम करने की जरूरत है. तो ऐसे केसेस में ऑल दोज इनवॉइसेस जो एक्सपोर्ट के रिलेटेड हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया सप्लाई होते हैं, वेदर इट इज गुड्स और सर्विस, दैट विल बी ट्रीटेड अंडर पॉइंट नंबर 6. सो एक्सपोर्ट इंडियन टेरिटरी. इंडियन टेरिटरी क्या होता है कि खाली आप समुद्र के सामने खड़े हो गए, बोले कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री खत्म इंडिया की. नहीं, इंडिया की बाउंड्री वो उस बाउंड्री वहां तक खत्म नहीं होती है. समुद्र के अंदर भी इंडियन के बॉर्डर होते हैं, इंडियन टेरिटरी होते हैं. वो इंडियन टेरिटरी कहाँ तक काउंट होते हैं, कितनी नॉटिकल माइल तक काउंट होते हैं, वो चीज भी हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ GST थियोरेटिकल पार्ट में. सो पॉइंट नंबर 7, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड. व्हाट इज एडवांस? Advance is something like you are receiving any such amount from a buyer to supply goods or service in future date. यानी कि आपको पैसा पहले मिल गया, आप गुड्स या सर्विस बाद में सप्लाई करोगे. तो इनिशियल लेवल व्हेन GST was introduced, at that time it was decided whether it is goods or service, party who is receiving who is receiving amount as an advance basis, they have to discharge their tax liability on advance, whether it is goods or services. Later on goods portion have been removed कि आज के दिन में goods पे नहीं, बल्कि in case if you are receiving any advance for service providing, so in such cases you have to pay, you have to discharge the tax liability according to the rate of GST. So it means अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस देते हो, आपको कोई एडवांस आता है, तो एडवांस आता है तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा.
सो बट इट दिस अ केस, यहाँ पे भी एक केस है कि अगर मान लो फॉर दिस मंथ यानी कि ये नवंबर में कोई एडवांस आया और उसका इनवॉइस भी नवंबर एंड होते होते रेज हो गया, तो क्या ऐसे केस में भी एडवांस बनेगा? नहीं, बनेगा ही नहीं, बिकॉज एडवांस रहा कहाँ वो, रिटर्न फाइलिंग होने से पहले ही उसका इनवॉइस रेज हो चुका, तो एडवांस बना कहाँ? एडवांस है ही नहीं। अब तो इनवॉइस रेज हो गया तो इनवॉइस पे टैक्स लायबिलिटी आ जानी चाहिए। दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। बट व्हाट इफ इनवॉइस उसका आफ्टर नवंबर रेज होता है, तो इन सच केस यू हैव टू पे द टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन advance received, and at the time of raising sales invoice in subsequent month, at the time you have to adjust the tax liability on advance that you have paid earlier. So आपको वो पे करना पड़ेगा. So that amount of adjustment that you made, that will be shown under table number, that is point number 8 under table 11B, adjustment of advances. That means the invoice you have raised in the month of December, let's say, that was against the advance received in November, that will be shown under point number A, that is adjustment of advance. हालांकि ये एडवांस दैट इज टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे इफ एंड बट वाले केस है कि अगर एडवांस आया लेट्स से 1000 रुपीज, इनवॉइस इसका लेट्स से 500 का ही बना, तो उस केस में क्या होगा? पोर्शन ऑफ द अमाउंट का एडवांस इसमें बना, पोर्शन ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट बना, तो ऐसे सच केस में क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सो इसका पूरा का पूरा 1 घंटे का अलग ही पूरा का पूरा वीडियो है जो कि हमने जीएसटी मैनेजमेंट इन टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दैट इज पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन उसके अंदर कवर किया हुआ है along with the practical and theoretical informations. So point number 9 is nil rated invoice. Nil rated invoice means those invoices which are नॉट हैविंग जीएसटी, यानी कि या तो टैक्सेबल नहीं है, या तो एग्जेम्प्ट है, या तो जीरो रेटेड है। सो ऐसे केसेस में आपका आउटवर्ड सप्लाई है बट विदाउट जीएसटी, इट इज कॉल्ड नील रेटेड सप्लाई। एंड बॉटम ऑफ द टेबल यू कैन सी HSN एंड सैक वाइज समरी दैट यू हैव टू अपलोड ऑन जीएसटी पोर्टल। आपने जो भी सप्लाई किया वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, उसका HSN वाइज या सैक वाइज समरी भी आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। वो भी चीजें हम यहाँ पे इस सेशन में कवर करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट समरी यानी कि आपने क्या क्या इनवॉइस, किस केस में कौन कौन से इनवॉइसेस आपने रेज किए हैं, वो भी चीजें हम इस वीडियो में, इस टॉपिक में यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स मूव टू टैली, जहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग करना है, उससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, वो सब चीजें हम देखते हैं। हम टैली प्राइम में सारी चीजें देखने वाले हैं, बट इफ यू आर यूजिंग टैली ERP 9 द प्रोसेस इज द सेम। जो टैली की चीजें हैं सब कुछ GSTR1 सब कुछ सेम है। देयर इज नथिंग एज मच डिफरेंस एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम टैली प्राइम, बट ऐसा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। सो अगर आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हो या फिर टैली प्राइम यूज कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन व्हाट इज द करेक्ट मेथड एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी नीड टू follow before filing our return. So let's move to tally prime. This is our tally prime. Let's maximize it. Okay, tally prime. So टैली प्राइम का जो फर्स्ट लुक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। टैली का रेट, टैली का लुक चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि टैली प्राइम कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके गुड फैक्टर क्या है, इसके बैड फैक्टर क्या है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इफ़ यू विश आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके भी उसको भी देख सकते हो। सो यस, so let's move to the main topic, that is GSTR1. So from gateway of tally you can go display, GST report, GSTR1. So GST report, GSTR1, sorry, GST report, GSTR1। आप ये जो रिपोर्ट आपने यहाँ पे एक एक टैब बटन प्रेस करके किया, ये डायरेक्टली आप यहाँ से गो टू से भी जा सकते थे। गो टू GSTR1 रिपोर्ट डायरेक्टली आपको यहीं से मिल जाएगी।
लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गो टू यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1, सी डायरेक्टली यहाँ पे ऑन हो जाता है। हालांकि इसके टैब बटन, इसके फीचर बहुत सारे लुक के साथ चेंज हुए हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे पीरियड डिफाइन करता हूँ, सितंबर। दिस इज माय डेटा GSTR1। GSTR1 का ये डेटा है। GSTR1 का डेटा जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको डेटा फाइल करने से पहले मेक श्योर कि आपका ये जो टैक्सेबल अमाउंट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके सेल्स के अमाउंट के साथ मैच होना चाहिए, सेल्स के फिगर के साथ मैच होना चाहिए। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स का फिगर आपको दिख रहा है, यही फिगर आपको वहां पे दिखना चाहिए। देखिए ये अमाउंट हम लोग सेल्स में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज 1339,720। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एंट्रीज जो है ना, वो एरर में दिखा रही है, जिसमें प्रॉब्लम्स है, करेक्शंस करने हैं। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये मैच करेंगे हम सेल्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि सेल्स के साथ मैच हो, बिकॉज कभी कभी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेफर्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू भी बुक करते हैं, तो वो मैच नहीं हो सकता है। तो देयर आर केसेस टू केसेस, आप क्या एमआईएस फॉलो करते हैं। बट फाइलिंग करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने, वो भी हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखते हैं यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, दैट इज करेक्शन नीडेड। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम उसको समझते हैं। लेट्स से मैंने इसको ड्रिल डाउन किया तो देर आर टू एंट्रीज, 1 सितंबर, 3 सितंबर को, पार्टी नेम, वाउचर टाइप, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, नंबर ऑफ एक्सेप्शन 1, यानी कि एक एरर है इस एंट्री के अंदर। रिटन एज मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, टैक्स अमाउंट को हमने मॉडिफाई किया हुआ है वाउचर में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं, मैंने इसको एंटर किया। सो आई कैन सी कि यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट था, टैक्स अमाउंट को हम लोगों ने डिफरेंस अमाउंट दिखा 0.07 एंड 0.19। तो इसका मतलब ये हो गया टैक्स एज पर कैलकुलेशन, यानी कि ऑटो कैलकुलेशन के फिगर के हिसाब से टैक्स अमाउंट बनता है 3260। बट एंट्री पे हमने इसको रिकॉर्ड, इसको चेंज किया 3260.60। इट मींस वी हैव ऑल्टर दैट अमाउंट। अब ये इसको हम लोगों ने ऑल्टर किया जो कि राइट है। अगर लेट्स से इफ इट इज राइट, तो क्लिक ऑन एक्सेप्ट एज इट इज। If it is the entry is correct, tax amount is correct, invoice आपने इशू कर दिया which is correct, then you can click accept as it is। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एंट्री में जाऊं, तो प्रेस कंट्रोल एंटर फ्रॉम ओवर हियर, यू कैन डायरेक्टली नेविगेट टू द पर्टिकुलर एंट्री। यहाँ पे आपने देखो जीएसटी अमाउंट को आपने चेंज किया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, मैंने स्पेस बार दबाया, अमाउंट निकाला, सी अमाउंट इज 644.74 which have been altered by us at the time of recording the entry. Amount has been changed to 645 instead of 644.74। so मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपने राउंड फिगर किया है विच इज राइट। तो जस्ट एंटर एंड क्लिक ऑन एक्सेप्ट एज इट इज। सो ये एंट्री जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ एरर लिस्ट से वो निकल गई। अब बचा कितना, एक एंट्री। यहाँ पे भी मिसमैच दिखा रहा है टैक्स अमाउंट में। चलिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट बड़ा है, तो ओके इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे एक्सेप्ट एज इट इज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट गलत दिखा रहा है। क्यों गलत दिखा रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ ड्यूटी लेजर, आउटपुट CGST, SGST कहाँ गया, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो जस्ट कंट्रोल एंटर एंड जस्ट ओपन द एंट्री, पार्टी नेम, वाउचर टाइप, आइटम नेम। ओहो यहाँ पे आउटपुट CGST और यहाँ पे आउटपुट CGST दो बार हो गया। इट मीन्स यहाँ पे होना चाहिए आउटपुट SGST। सो यहाँ पे हमने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री गलत की थी, उसको सेव कर दिया। तो यहाँ से ये एरर लिस्ट भी यहाँ से निकल चुकी है। यू कैन सी एरर लिस्ट इज 0 नाउ। सो अब देखो यहाँ पे सेल्स का फिगर चेंज हो गया। इट वाज 13 लाख, नियर अबाउट 13 लाख। अब ये सेल्स फिगर चेंज हो गया, नाउ 15,22,220 रुपीज एक्सेप्ट दिस 10,000। ये 10,000 को टैक्स लायबिलिटी जो एडवांस आया उसको इंक्लूड मत करना बिकॉज ये सेल्स फिगर में काउंट नहीं होगा। तो आपका फिगर ये जो टैक्सेबल अमाउंट है वो सेल्स फिगर से ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए एक्सेप्ट दिस टैक्स लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 7 एंड 8 का ये छोड़ के। तो चेक करें फिगर मैच हो रहा है क्या। तो मैं सेल्स फिगर मैच कर रहा हूँ, तो सेल्स फिगर कहने का मतलब सेल ऑफ गुड्स सर्विस और आपके जो इनकम होंगे वो भी बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से गो टू
प्रॉफिट एंड लॉस, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस 14,92,000। अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल पीरियड दे दूँ, यहाँ पे सितंबर टू सितंबर, यहाँ पे मुझे दे देना है डिटेल। तो डिटेल में क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है डिटेल, पुराना शॉर्टकट वही है, सेल्स फिगर एंड एक्सपोर्ट सेल्स। ये फिगर आपको वहाँ से कर लेना है मैच। और आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, सी इनडायरेक्ट इनकम भी यहाँ पे काउंट होगा आपका। ये एक्सपेंसेस जो है आपका इनकम हो गया है बिकॉज सेल्स में रेस किया है। तो 1490 टू 220 प्लस 22,000 दैट विकल 15 समथिंग नियर अबाउट 10,000 छोड़ के, यानी कि ऑलमोस्ट फिगर मैच हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको खाली सेल्स फिगर मैच नहीं करनी, सेल्स प्लस इनडायरेक्ट इनकम मैंने बताया आपको। ये एक्सपेंस मैंने डाला, दैट इज ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो इनवॉइस पे रेज हुआ है वो मैंने एक्सपेंस में डाल दिया है। यू कैन क्लिक ऑन अंडर इनकम एज वेल। तो मैं इसको इनकम में चेंज कर दूं सो दैट आपको दिखा दूं मैं। तो इसका मैकेनिज्म जो है टैली प्राइम का वो पुराना तरीके से वर्क करता है। आप चाहो तो जो टैली ERP 9 यूज करते हो वैसे ही पूरा का पूरा वर्क करता है, ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। हालांकि कुछ शॉर्टकट कीज चेंज हो गए हैं बट ये वर्किंग उसी तरीके से करते हैं। नाउ यू कैन सी इनडायरेक्ट इनकम 20 प्लस 1490 टू 220 दैट विल बिकम ऑलमोस्ट अपना जो GSTR रिपोर्ट में दिखा रहा है 1 में, ये वही चीज़ है। मैं पीरियड चेंज करता हूँ सितंबर टू सितंबर। तो इसमें 10,000 ये अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, बाकी आप देख लो पूरा का पूरा अमाउंट टैली हो गया। सो इट मींस बिफोर फाइलिंग आवर रिटर्न्स वी हैव टू मैच आवर टैक्सेबल वैल्यू विद सेल्स। सेल्स कॉल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस इनकम ऑफ अदर रिलेटेड रेवेन्यू, वो भी मैच करनी है। मैच हो गया तो ठीक है, अगर नहीं मैच हुआ तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मैच क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इनवॉइस जो हमने जिसपे आना चाहिए था जिसको जेबी में रिकॉर्ड कर दिया, जैसे फिक्स असेट सेल किया हम लोगों ने तो वो भी आने चाहिए थे, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। तो टैक्सेबल सेल्स में आपका अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल किया है जिसपे आपने GST कलेक्ट किया है तो वो भी आपका यहाँ पे आएगा और वो भी आपको मैच करना होगा। सो ये तो हो गया आपका यहाँ पे IGST, ये भी आपको मैच करना है कि आपका जो IGST दैट इज आउटपुट IGST है 165,931, ये भी आपको आपके टैक्स लायबिलिटी लेजर से मैच करना चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट के लेजर में ये दिखना चाहिए। IGST 165,931 21,065, यहाँ पे जाके आप बैलेंस शीट में जा सकते हो। आप यहाँ पे डिटेल में क्लिक कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से करंट लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सी 165 21,065 27,065, इट इज द सेम। ये मैच करना इन द सेंस आपको मैच करना है, बिना मैच किए आप डेटा रेडी नहीं कर सकते हो। आप डेटा रेडी नहीं कर जब तक आपका डेटा पूरा मैच नहीं हो जाएगा। मैं वापस चलता हूँ, अब वी विल स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। सो वी आर ओके विद एवरीथिंग नाउ, सब चीजें प्रॉपर है, हमने डेटा एंट्री रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये GSTR1 रिटर्न फॉर्मेट है। अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में देखना चाहो, चेंज व्यू, ये हालांकि पुराने टैली में भी है अवेलेबल है, स्टेटस वाइज, रिकंसिलेशन, नेचर वाइज, लेकिन मैं यहाँ पे नेचर वाइज यहाँ पे व्यू करना चाहूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पर आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट, सेल्स फिगर, ये रिटर्न फॉर्मेट नहीं है, ये आपका वर्किंग फॉर्मेट बोलते थे जिसको हम लोग कि 12% से कितना सेल किया मैंने, 18% से कितना सेल किया, उसमें CGST कितना, SGST कितना, ये पुराने टैली में भी मिल जाएगा आपको, टैली ERP 9 में भी है। तो आपका टैक्सेबल फिगर का ब्रेकअप विथ परसेंटेज वाइज, विथ परसेंटेज वाइज का IGST, CGST, SGST, आपको लेजर परसेंटेज वाइज बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस रिटर्न व्यू में जाता हूँ। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले जस्ट आप डेटा खुद फाइल करो या फिर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से फाइल कराओ, किससे भी फाइल कराओ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए और हर एक डेटा का फाइलिंग करने से पहले आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। बैकअप इन द सेंस आपने डेटा क्या फाइल किया, वहां से 4 महीने बाद पूछूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा डेटा क्या फाइल किया था, क्या किया था हम लोगों ने। तो हर एक जब रिटर्न फाइलिंग करोगे तो मेक श्योर कि आपने इस डेटा का, इस चीज का आपने बैकअप यानी कि एक्सेल में इस रिटर्न का बैकअप आपको रखना है। तो बैकअप रखने के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले इस जो GST रिपोर्ट है इसका बैकअप रखना है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है आपको। एक्सपोर्ट में नॉर्मल मैं एक्सपोर्ट लेता हूँ, जैसे कि करंट कंट्रोल ई, इस रिपोर्ट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, फॉर्मेट लूंगा मैं एक्सेल,
एक्सेल फॉर्मेट लेते हैं, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट दैट इज एक्सेल फाइल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज फाइल फॉर्मेट, सेलेक्ट एक्सेल, फाइल फॉर्मेट एक्सेल। इफ यू विश टू अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, यस, मुझे यस रखना है। मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करूंगा फाइल फोल्डर पाथ दैट इज सी प्रोग्राम फाइल टैली आरपी टैली प्राइम। फाइल का नाम देता हूं मैं सितंबर, सितंबर का रिटर्न, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट। सी कॉन्फ़िगरेशन इज रेडी। एक्सेल लोकल ड्राइव में मैंने पाथ सेलेक्ट किया है, फाइल का नाम सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से इसको सेंड यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो ये जो मेरा मेन पेज है, जो बैकग्राउंड में जो GSTR1 का दिख रहा है पार्ट, ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है यानी कि इस पोर्शन को मैं एक तरह का बैकअप अपने पास रख रहा हूँ, सो दैट कल को अगर मेरा कुछ भी चेंजेस करना हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, सो दैट आई कैन शो इट। अच्छा, मैंने रिटर्न में ये फाइल किया था, ये इनवॉइस है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आप रिटर्न फाइलिंग करोगे, हो सकता है कि आपने डेटा दिया सीए को, सीए ने कोई इनवॉइस मिस कर दिया और कोई इनवॉइस गलत फाइल कर दिया, मतलब हो सकता है इंटेंशनली और इनइंटेंशनली कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है। सो एट द टाइम टू सेव द टाइम और टू सेव सच एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आपको इट इज बेटर कि आप बैकअप लेके रखो उसका। तो ये मैंने बैकअप यहाँ पे बना लिया, इसका एक्सपोर्ट हो रहा है और ये फाइल हो गई ओपन। तो मैंने यहाँ पे फाइल रख ली, तो हर एक फाइल फोल्डर का मैंने ये व्यू जो है बैकअप के तौर पे रख लिया है। सो अब ये आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसी बगल में ही शीट में, यानी कि जैसे एग्जांपल, अब ये आपका मेन पेज हो गया, आपका ये टाइल GSTR1 का मेन पेज हो गया। अब आपको इसका जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो कि ये टेबल नंबर 1 में ये आपका है B2B इनवॉइस में टैक्सेबल सेल कितना है और रिवर्स चार्ज सेल कितना है। लेकिन आप B2B में जो 3 इनवॉइसेस दिख रही है, इसमें 3 इनवॉइसेस कौन कौन से, वो 3 इनवॉइसेस है, वो 3 इनवॉइसेस कौन कौन से, इसका बैकअप भी आपको रखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रिल डाउन करके ये वाउचर वाइज इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो, अलग सीट में बना लो। जैसे कि यहाँ पे बना लिया आपने B2B इनवॉइसेस, उसी तरह से यानी कि ये जो एक्सपोर्ट है, यानी कि इस पे आपको शीट में ओवरराइड कर देना है। तो ये सारे इनवॉइसेस आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट करने हैं। एक्सपोर्ट करंट कॉन्फ़िगर कर लेना आपको वापस से। मैं फाइल को क्लोज कर दूं उससे पहले, ये क्लोज किया मैंने, और यहाँ पे मैंने फाइल फॉर्मेट लिया, लेट्स से एक्सेल, एक्सेल और लोकल ड्राइव, यस, और यहाँ पे फाइल का नाम मैंने रखा था सितंबर, और फाइल का नाम सितंबर, यहाँ पे और शीट का नाम भी रखना है अपने को, फोल्डर नाम, फाइल नेम, ओपन आफ्टर एक्सपोर्ट, यस। ये फाइल हो गई मेरी, ये कॉन्फ़िगर मैंने कर लिया है। अब ये कॉन्फ़िगर इन द सेंस सितंबर की फाइल का नाम सितंबर हो गया। तो ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे यहाँ से कर देना है सेंड। सो इससे क्या होगा, तो इससे हुआ ये यहाँ पे कि उसका B2B इनवॉइस यहाँ पर आपका अपडेट हो चुका है। सो तो GSTR1 में यहाँ पे आपका आ गया ये फाइल। उसी तरह से इसका बैकअप यहाँ पर है B2B, आप इसका नाम चेंज कर दो। इसी तरीके से आपको इसका इस टेबल में कौन कौन से इनवॉइसेस है, इसका भी आपको यहाँ पे बैकअप तैयार करना है। B2C में कौन कौन से, उसका भी बैकअप। हर एक टेबल का आपके पास जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप है, उसका हर एक का बैकअप यहाँ पे लेके रखना है। तो आप में से कोई सवाल ये कर सकता है कि व्हाट इफ मैं बैकअप ले रहा हूँ, फाइन, बट ये चीज तो मैं हर एक एक्सपोर्ट करने से अच्छा है GSTR1 जो मैं ऑफलाइन फाइल करता हूँ, जो एक्सेल के थ्रू फाइल करता हूँ, उसमें तो ऑटोमेटिक आ जाती है टेबल, तो ये मुझे बार बार करने की जरूरत क्यों है। सी दैट इज फाइन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि B2C जो होता है वो स्मॉल जो होता है वो स्टेट वाइज होता है। इसका एक्सपोर्ट जब आप करोगे उस पर्टिकुलर एक्सेल ऑफलाइन में यूटिलिटी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हर एक का इनवॉइस क्या क्या इसके अंदर का इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं जाती है। इसीलिए आपको हर एक का B2C वाले का बैकअप आपको वहां पे होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे तो क्या चली गई समरी, समरी में आपको तो नहीं पता चला कौन सा इनवॉइस नंबर, क्या डेट, कौन सी पार्टी है, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने जो फाइल बनाई उसका हर एक का बैकअप आपको लेके उसका यहाँ पे रखना पड़ेगा। बैकअप रेडी है, दैट मीन्स फॉर योर सेफ्टी, ये आपने रख लिया, ये रिटर्न से का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सेव कर लिया कि मेरा डेटा रेडी है,
मैंने बैकअप रख लिया कि मैंने रिटर्न में कौन कौन से डेटा अपलोड किए हैं। अब बात आती है अपना रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए वापस हम जाएंगे एक्सपोर्ट में। अब हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ई रिटर्न। ई रिटर्न सेलेक्ट किया। ई रिटर्न में फाइलिंग सेलेक्ट करने के लिए देयर आर 3 मेथड, CSV एंड एक्सेल इज द सेम वन। CSV एक्सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल फॉर्मेट का नाम दे दिया इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी ऑल वाउचर्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेंड। तो ये एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी मॉड्यूल है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करके यूटिलिटी मॉड्यूल में कन्वर्ट करके जेसॉन फाइल बना सकते हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। एक्सेल फाइल से रिटर्न फाइलिंग करना थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, हम दूसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे दैट इज जेसॉन फाइल फॉर्मेट। लेकिन पहले ये एक्सपोर्ट हो जाए तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये सारे के सारे जो टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं B2B B2C स्मॉल, सारे के सारे ये भी यहाँ पे भी अपडेट हो जाते हैं। सी यहाँ पर भी आ गए B2B। तो यही सवाल लोग करते हैं कि यहाँ पे जब मेरा बैकअप रेडी हो गया तो मैं वापस क्यों बैकअप लूँ। तो यहाँ पे रेडी हुआ बट यहाँ पे पार्टी का GST नंबर दिख रहा है, रिसीवर का नाम नहीं आता, इनवॉइस नंबर है, डेट है। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको कि पार्टी कौन, यहाँ पे देखो इनवॉइस 2 बार दिख रहा है बिकॉज उसी इनवॉइस में 2 अलग अलग रेट ऑफ GST होंगे। B2C में देखो यहाँ पे लार्ज में तो हो गया, B2C स्मॉल में आपको तो महाराष्ट्र का दिखा, समरी दिख गई, लेकिन पार्टी वाइज डिटेल कहाँ है इसमें नहीं आता है। तो ये रिटर्न फाइलिंग करने का ऑफलाइन मैकेनिज्म है, ये बैकअप नहीं है, तो बैकअप लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक्सेल फॉर्मेट हो गया जिससे आप फाइलिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो आज के दिन में रिटर्न फाइलिंग करने का होता है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक किया, ई रिटर्न पे क्लिक किया, फाइल सेलेक्ट किया जेसॉन। आपको फाइल जहाँ पे भी सेलेक्ट करना है, फाइल फोल्डर का लोकेशन जो देना है, आपने फाइल फोल्डर का लोकेशन दिया ऑल वाउचर, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेंड। तो ये फाइल हो गया डायरेक्टली जेसॉन फाइल, और इस जेसॉन फाइल को मैं डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकता हूँ। सी यहाँ पे ये जेसॉन फाइल आ गई। अब ये जो जेसॉन फाइल है मैं डायरेक्टली पोर्टल पे इसको अपलोड कर सकता हूँ। ये तो आपका एक्सेल फाइल है जो पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड नहीं होता है, बट जेसॉन जो होता है वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अब ये अपलोड कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टल लॉगिन करके। चलिए पोर्टल लॉगिन करते हैं, GST इन टैली। तो ये पोर्टल लॉगिन कर लिया हम लोगों ने। अब पोर्टल लॉगिन करने के बाद हमें फाइल रिटर्न में आना है, फाइल रिटर्न, सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ। नाउ सी यहाँ पे GSTR1 GSTR2A जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कौन सी रिपोर्ट होती है, 2B एंड 3B। ये जो 1 एंड 3B ये तो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो पोर्टल हमें यहाँ पे दिखाता है। अब मैंने रिटर्न फाइलिंग करना है तो ऑप्शन दे रहा है GSTR1 के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन, यानी कि मैनुअली आप जाके हर एक एंट्री को मैनुअली अपडेट करो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ऑप्शन कॉल प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑफलाइन में जाना है आपको, यहाँ से वो आपको चूज फाइल करनी है जो फाइल आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखी थी जेसॉन, उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रोसेस किया। तो प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आ जाता है डेट एंड टाइम, ये प्रोसेस हो चुका है। अगर किसी तरह की कोई एरर होगी तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, एरर नहीं है तो यहाँ पे एरर एज अ नॉट अप्लीकेबल। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि अपलोड करते वक्त बिकॉज पुराना मॉड्यूल था हमारे पास, पुराना टैली से हम कर रहे थे, यहाँ पे मेरा टैली अपडेटेड नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे एरर दिखाया था। बट लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली में यहाँ पे अपडेटेड है तो यहाँ पे एरर नहीं दिखाया और ये डेटा अपलोड हो चुका है। अब ये डेटा अपलोड होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बैक टू फाइल रिटर्न पे 2020-21 अक्टूबर यहाँ पे सिलेक्ट किया हम लोगों ने, सॉरी सितंबर सेलेक्ट किया यहाँ से। अब प्रिपेयर ऑफलाइन में हमारा डेटा अपलोड हो चुका है, हमें प्रिपेयर ऑनलाइन में आके वेरीफाई करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन में गए तो प्रिपेयर ऑनलाइन में सारा डेटा यहाँ पे आना चाहिए जो कि टेबल फिलअप नहीं हो रहा है। ये एक इनवॉइस दिखा रहा है वो जो कि मैंने पिछले सेशन में मैनुअली एंट्री करके दिखाई थी, तो ये मैं निकालता हूँ, रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो डेटा जो आपने अपलोड किया उसको आने में 5 से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लगता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आपको वेरीफाई करने के लिए अगर डेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो आप सबसे नीचे जाओ, यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट GSTR1, क्लिक करना है अपने को और इसको रिफ्रेश कर देना है।
तो GSTR1 समरी यहाँ पे जनरेट होगी, लेकिन अपने को वेट करना होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने जनरेट GSTR1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे टाइम दिखाएगा, यू हैव टू वेट टिल 4:36, यानी 4:36 तक वेट करना है, यानी कि अभी जो टाइम है 30 का 36 तक मुझे वेट करना है। तो अपने को खाली बस ये जो डेटा हम लोगों ने पुलअप किया रहेगा, जो टैली में ये जो डेटा दिख रहा है सेम टू सेम, जैसे B2B इनवॉइसेस, तो ये B2B इनवॉइसेस पोर्टल यहाँ पे दिखेगा, इस टेबल में दिख जाएगा। B2C लार्ज यहाँ पे दिख जाएगा, क्रेडिट नोट यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट आएगा, अनरजिस्टर्ड का यहाँ पर, एक्सपोर्ट यहाँ पर, अमेंडमेंट हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का अमेंडमेंट वो भी सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, हम डिस्कस करेंगे। और जो B2C स्मॉल था वो यहाँ पे दिखेगा, नील रिलेटेड यहाँ पे, एडवांस रेट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे, एडजस्टमेंट यहाँ पे, HSN वाइज एंड डॉक्यूमेंट समरी अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो डेटा हमारा पोर्टल पे यहाँ पे टैली में दिख रहा है, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अपनी, जहाँ पे हमने देखा JSON फाइल डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया टैली से और उसके थ्रू हम लोगों ने फाइल कर लिया। अगर आप JSON फाइल अपलोड कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड। अगर JSON फाइल नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यूटिलिटी फाइल का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ऑफलाइन टूल GSTR1 ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी। GSTR1 रिटर्न ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल आपने क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है रिटर्न ऑफलाइन टूल, प्रोसीड। हालांकि रेयर के केस में कोई रिटर्न ऑफलाइन टूल यूज करता है, रेयर टू रेयर केस में ही ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। जब तक डाउनलोड होती तब तक मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कि ये मेरा पोर्टल पे डेटा आ चुका है क्या। अगर आ चुका रहेगा तो वेल एंड गुड, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, हर एक लेजर का वैल्यू है, उसका अमाउंट है, वो चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर नहीं करने वाले, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने GST मैनेजमेंट वाले टॉपिक में सेशन में कवर किया हुआ है। तो मैं वापस एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ अगर एंट्री आ चुकी रहेगी, बिकॉज 36 तक टाइम है तो डेफिनेटली नहीं आ रहेगी। तो ये मेरा पोर्टल से डाउनलोड हो रहा है ऑफलाइन टूल, मैं इसको रन करता हूँ, वेट, इसको मैंने ओपन किया, शो इन फोल्डर, तो आई गेस अभी भी वेरीफाई हो रहा है, ये इसको गूगल स्कैन कर रहा है, ये शो इन फोल्डर, डाउनलोड GST ऑफलाइन टूल, एक्सट्रैक्ट हियर, GST ऑफलाइन टूल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो ये हो रहा है एक्सट्रैक्ट। CSV फाइल सी, यहाँ पे ये GST ऑफलाइन टूल आ जाती है, इसको मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, सेंड टू डेस्कटॉप। उस एप्लीकेशन फाइल को मैंने रन करके इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये आइकन डेस्कटॉप पे यहाँ पे अवेलेबल है, इसको मैंने रन करके इंस्टॉल किया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ GST ऑफलाइन टूल। इसमें करना क्या होगा, इसमें जो अपनी जो एक्सेल फाइल हम लोगों ने एक्सपोर्ट की है उसे ही सीधा इंपोर्ट करना होगा, और इससे हम लोग को JSON फाइल क्रिएट करनी होगी। तो ये ऑन हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑन होने में टाइम लगेगा। तो एप्लीकेशन फाइल हालांकि कोई यूज़ नहीं करता, बट फिर भी मैं एज अ रेफरेंस के तौर पे, मैं एज अ बैकअप के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑफलाइन टूल के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो लेट्स वेट करते हैं इसका एप्लीकेशन ऑन होने में। टिल द टाइम मैं टैली से GST नंबर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ऑफलाइन टूल ऑन हो चुका है, मैंने GST नंबर यहाँ पे नोट कर लिया है। ये ऑफलाइन टूल पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड न्यू इनवॉइसेस, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया GSTR1, मुझे यहाँ पे कंपनी का GST नंबर एंटर करना होगा, तो चलिए एंटर करते हैं 27 AEFPS 1532N 1Z6 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020। मैंने रिटर्न पीरियड लिया था सितंबर, इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। मैंने प्रोसीड किया,
प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमें वो जो एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट की थी वो इंपोर्ट करनी होगी। यहाँ से इंपोर्ट एक्सेल फाइल मैंने क्लिक किया है, तो ये मुझे पूछेगा वो एक्सेल फाइल आप लोग जो एक्सपोर्ट की उसका लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन में मेंशन करूँगा। तो वो लोकेशन है यहाँ पे पर्टिकुलर फोल्डर का लोकेशन कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। वो फाइल जो थी वो एक्सेल में यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैंने ओपन किया। यस, आर यू श्योर? यस, डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। डेटा अपलोडेड यानी कि इस टूल में अपलोड हुआ है, पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लिक करना है व्यू समरी में, तो यहाँ पे सारी एंट्री वो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन टूल में जो आपके ये HSN वाइज डिटेल तो आ जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट समरी यहाँ पर नहीं आती है। डॉक्यूमेंट समरी आपको मैनुअली पोर्टल पे जाके एंटर करनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन टूल में आपको याद रखना है कि अगर आप ऑफलाइन टूल यूज करते हो तो डॉक्यूमेंट समरी यहाँ पर नहीं आएगी, आपको जाके मैनुअली वहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड देन आफ्टर करना क्या है, ये सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद जनरेट फाइल, और यहाँ पे देखिए एक HSN जो JSON फाइल है वो बन जाती है। तो इस JSON फाइल को आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, और इस JSON को आप पोर्टल पे जाके अपलोड करोगे जैसे हमने पिछला JSON अपलोड किया था। सो कहने का मतलब अगर टैली से डायरेक्ट JSON जनरेट होता है तो आपको ऑफलाइन टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको डाउनलोड या फिर अपलोड करके वापस नहीं दिखाने वाला हूँ, बट ऑफलाइन टूल जो आप इस्तेमाल करके JSON फाइल भी जनरेट कर सकते हो इफ यू विश। सो हम लोग वापस चलते हैं पोर्टल पे, दैट इज जहाँ पे हमने डेटा अपलोड कर दिया है। आई गेस डेटा वहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। चलिए लॉगिन करते हैं वापस से, लॉग आउट हो चुका है, लॉगिन किया करता हूँ मैं। तो ये मेरा लॉगिन कैप्चा एंटर किया, मुझे पीरियड सेलेक्ट करना है, दैट इज रिटर्न सेलेक्ट करना है अपना जो था सितंबर 2020। डेटा अपलोड हो चुका था क्योंकि एरर कुछ नहीं आया था, हालांकि एंट्री अपलोड होने में रिफ्लेक्ट करने में पोर्टल पे टाइम लगा था 5 से लेके 10 मिनट तक का। तो सितंबर सर्च प्रिपेयर, अब ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं है ना, अभी हमें जाना ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जाएंगे तो हम वहाँ पे जो एंट्रीज हमने अपलोड की थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये डेटा अभी भी यहाँ पे 1 दिख रहा है, बाकी डेटा फिल अपलोड नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं GSTR1 जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जनरेट GSTR1 समरी इज प्रोसेस इनिशिएटेड, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। सी रिफ्रेश कर लिया, आपके सामने देखो यहाँ पे एंट्रीज आ चुकी है 3 B2C लार्ज। ये वही एंट्री है जो हम लोगों ने टैली में रिकॉर्ड की है। एक्सपोर्ट इनवॉइस भी आ चुका है, क्रेडिट नोट भी आ चुका है, और यहाँ पे B2C स्मॉल भी आ चुका है। एडवांस का भी टेबल फिल हो चुका है यहाँ पे लाइव आपके सामने। नील रेटेड डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटिकली आ चुका है, HSN समरी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो चुकी है। सो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने जो भी चीज़ें पोर्टल पे अपलोड की डायरेक्टली थ्रू टैली के JSON, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ चुकी है। सो दिस इज द प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है फाइल करना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। करना क्या है इसके बाद से, सब ओके वेरीफाई कर लिया, ओके आई एक्नॉलेज सबमिट करना है, एंड देन आफ्टर अपने को रिटर्न फाइल क्लिक करना है। हालांकि मैं रिटर्न फाइलिंग नहीं करूंगा बिकॉज ये जितनी भी एंट्री मैंने रिकॉर्ड की है सारे के सारे डमी है, और मुझे पोर्टल से ये सारे एंट्री डिलीट करने पड़ेंगे इस लॉगिन पोर्टल से जाके। सो मैं यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको डिलीट करूँगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइव सेशन। ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं इसको कंप्लीट करके डिलीट करूँगा यहाँ से। तो ये आपको फाइल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो अब सवाल आता है कि एक बार मैंने रिटर्न फाइल कर दिया तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डूज एंड डोंट्स क्या वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल आता है अमेंडमेंट कि अब अगर कोई इनवॉइस हमें अमेंड करना पड़ा, तो ये रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न फाइलिंग हम लोगों ने कब तक खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे अमेंड की, कि अगर कभी कोई इनवॉइस हमें अमेंड करना पड़ा तो वो कौन से केसेस में अमेंड हो सकता है और क्या प्रोसीजर क्या है उसका अमेंड। तो अमेंड का मतलब ये होता है कि इनवॉइसेस को चेंज करना ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कि आपने क्या किया, इनवॉइस बुक्स में रिकॉर्ड किया है 1200, आपने 1200 रिकॉर्ड किया, आपने वही पार्टी को 1200 का इनवॉइस दे दिया, दैट इज फाइन, बट नोट ये हुआ पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग करते वक्त 1220 हो गया वो गलती से।
तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो रेज नहीं कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि वो एंट्री जो मैंने गलत अपलोड कर दी है उसका मैं क्या करूं, उसको आप अमेंड कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई इनवॉइस नंबर गलत कर दिया है, पार्टी का जीएसटी नंबर ही गलत हो चुका है, टैक्सेबल अमाउंट गलत हो गया, जीएसटी रेट गलत हो गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपने गलत कर दिया है, यानी कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो चुकी है, तो ये चीज़ गलत को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई इन द सेंस करेक्ट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। तो अमेंड करना मतलब यानी कि जो चीज़ आपने बुक्स में रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से कर रखी है लेकिन रिटर्न में गलत चला गया, तो उसको आप अमेंड कर सकते हो। तो रिटर्न रिवाइज नहीं होता, जीएसटी रिटर्न कभी भी रिवाइज नहीं होता है, लेकिन आप उसको अमेंड कर सकते हो। अमेंड करने का तरीका कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अमेंड करने के लिए करना क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई पिछले रिटर्न का कोई इनवॉइस आपने गलत फाइल कर दिया था। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, कोई भी एक मंथ का रिटर्न लेता हूँ, लेट से जून 2020 में कोई इनवॉइस देखते हैं हम लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया रहेगा। जून 2020 GSTR1 फाइल हो चुका है। अब यहाँ पे कोई इनवॉइस होगा जो हम लोग को देखना है कि फाइल हो चुका है, जैसे कि B2B इनवॉइस अमेंड करना है मुझे। यहाँ पे पार्टी दिख रही है, लेट से मैं ये पार्टी का इनवॉइस है, ये पार्टी का इनवॉइस नंबर 83, इनवॉइस डेट 18 मार्च यानी 19-20 का है ये इनवॉइस। 19-20 का अमेंड करना यानी इनवॉइस बिलोंग करता है 19-20 का, 83 इनवॉइस नंबर, और टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी है। जीएसटी अमाउंट जो है ये CGST SGST लगा है। तो इसमें मुझे एग्जांपल कुछ भी चेंज करना है, वो क्या चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ। लेट से 83 नंबर है, तो चेंज यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं चेंज करूंगा आने वाले अगले रिटर्न में। तो आपका जो अगला रिटर्न पेंडिंग है तो उसमें जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे सितंबर का जो रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूँ अभी, हालांकि भले ही वो डमी है, लेकिन अब करना क्या है, जब आप अपना अगला रिटर्न फाइल करेंगे चाहे क्वार्टरली, सितंबर में गए प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑनलाइन में यहाँ पे ऑप्शन देखा था अमेंड करके, अमेंड B2B, अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंड B2C लार्ज, यानी कि वो इनवॉइसेस में अगर कुछ करेक्शन करने हैं तो आप यहाँ से अमेंड कर सकते हो। जैसे ही मैं B2B इनवॉइस अमेंड करने वाला हूँ, तो अमेंड करने के लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, तो 19-20 20-21 याद रखना कि हम लोग एक पीरियड लिमिट होती है, उसके बाद कोई भी इनवॉइस अमेंड नहीं कर सकते हैं। 19-20 का इनवॉइस अभी भी हमें अमेंड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे लिया इनवॉइस नंबर एंटर किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने अमेंड। तो ये वो इनवॉइस की डिटेल सारी यहाँ के ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे देखो जो चीज़ें ब्लॉक है, जो हाईलाइटेड नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज करने के लिए, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पार्टी का जीएसटी नंबर ही चेंज कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस नंबर, रिवाइज इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू। जैसे एग्जांपल की तरह फर्ज करो कि ये इनवॉइस एक्चुअल में गलती से 18% का नहीं 12% का था, तो यहाँ पे आप 12% में भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें चेंज कर सकते। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इस वैल्यू को, यहाँ से मैं यहाँ पे 25,000 कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इसको निकाल के 25,000 रुपीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो और ये सेव कर सकते हो। तो यानी कि आप जीएसटी के टैक्सेबल वैल्यू से लेके जीएसटी से लेके प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर सकते हो, टोटल इनवॉइस की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। और कभी कभी मालूम पड़ा कि आपने जो 83 इनवॉइस नंबर दिया था वो सिल्वर पार्टी का नहीं था, वो किसी और पार्टी का बिलोंग करता था, तो आप दूसरी किसी भी पार्टी का बिलोंग करता तो उसका नाम चेंज करके यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो और एंट्री को सेव कर दोगे। इससे होगा क्या, आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे और सितंबर का रिटर्न फाइल करोगे, जैसे ही सितंबर का रिटर्न फाइल करोगे तो सामने वाली पार्टी की GSTR2A में अमेंडेड इनवॉइस रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी इनवॉइस उसने रिकॉर्ड किया रहेगा 2A में दिखा होगा उसको, वो एज पर अब जो करेक्टेड होगा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपने मिस्टेक की रहेगी वो सही हो चुका रहेगा। तो ये अमेंड कर सकते हो। लेकिन हालांकि अमेंड देखो कैसा होता है, अमेंड मतलब आपने बुक्स में राइट है लेकिन रिटर्न गलत कर दिया, तो अमेंड को आपको उस वे से यूज करना, उस टूल की तरह इस्तेमाल करना जहां पे आपकी गलतियों को सुधारा जा सके। लेकिन अमेंड टूल का इस्तेमाल ऐसा नहीं करना है कि आप इसका मिसयूज करो। मिसयूज क्या होता है, जैसे कि आपने कोई इनवॉइस 83 का आपने रेज किया, आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं 83 किसी और पार्टी के नाम से दिखाता और 85 में आगे दिखा दूंगा, मतलब मिसयूज। मिसयूज किसी भी तरह का हो सकता है, तो किसी भी तरह से मिसयूज करने के लिए आप इसको यूज ना करें। अमेंड का पर्पस जो है, पर्पस वही यूज करें इसको। तो ये हो गया अमेंड करने की बात। तो अमेंड करने में जो भी चीज़ें आप चाहो अमेंड कर सकते हो। तो
अब मैं बात करता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या है इसके। डूज एंड डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो डूज एंड डोंट्स की अगर बात करूँ मैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है, चाहे वो GSTR 1 हो चाहे GSTR 3 हो, अगर हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है तो डेटा लॉक हो जाना चाहिए। कोई भी यूजर कोई भी एंट्री पीछे बैक डेटेड की चेंज ना करे। हो सकता है वो गलती से कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त वो ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, मिस्टेक्स हो सकती है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग ही तो है। अगर हमसे गलतियां हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू वरीड अबाउट दैट, बट मेक श्योर कि आप डेटा लॉक कर दो। कोई भी एंट्री पीछे जाकर रिकॉर्ड नहीं करे, कोई भी एंट्री ऑल्टर नहीं करे, एमिट नहीं करे, उसको एडिट नहीं करे। अगर कुछ भी करना हुआ तो अमेंडमेंट का यूज करो या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज करो। अमेंड करना हुआ तो अमेंड को प्रॉपर तरीके से एथिकल तरीके से आपको यूज करना है। और हर महीने का रिटर्न फाइलिंग के बाद आपका उसका बैकअप तो आपको लेना ही है कि इस महीने मैंने जो रिटर्न फाइलिंग किया, चाहे GSTR 1 चाहे GSTR 3 भी, उसका मैंने प्रॉपर बैकअप ले रखा है। तो कुछ क्वेरीज हो सकती है कि अरे अगर ऐसा हो गया, मेरा एंट्री एडिट हो गई बाद में, तो बाद में प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को होती है जब हम किसी कंपनी का GST ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, टैक्स इन द सेंस GST की बात कर रहा हूँ, एनुअल ऑडिट करते हैं या फिर मंथली रिकन्सिलेशन करने बैठते हैं रिटर्न और बुक को। तो हमारे लिए सरदर्द क्या होता है कि जो रिटर्न फाइलिंग हमारा 4 दिन के अंदर रिकन्साइल हो जाना चाहिए था, वो 4 दिन क्या 1 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारा डेटा बुक्स के साथ मैच नहीं होता है। और ऐसे केस में होता है क्या, यूजर बोलेगा अरे मैंने तो फाइल कर दिया था, यही तो डेटा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको जो है ना, आप चाहे खुद फाइल करो चाहे आपके कंसल्टेंट फाइल करे, कोई भी फाइल करे, लेकिन उसका बैकअप, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन करो कि किस डेट पे मेरा कौन सा फाइल करना है, उसका ड्यू डेट क्या है, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, हर एक चीज का आपको ये चीज फॉलो करनी होगी। अब GSTR 1 अगर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को देते हो, अपने CA को देते हो, तो मेक श्योर कि आपके पास जब बैकअप है तो उन्होंने जो फाइल किया वही बैकअप आपके पास भी है। जब रिटर्न फाइलिंग वो कर देते हैं, बोलते हैं मैंने रिटर्न फाइलिंग कर दिया, तो उनसे एक्नॉलेजमेंट कॉपी यानी रिटर्न कॉपी लिया करो और उस रिटर्न को अपने इस बैकअप जो आपने लिया रहेगा उसके साथ मैच करो कि हाँ ये मेरा मैच है। अगर नहीं मैच हुआ तो हो सकता है CA ने कुछ चीजें अमेंड की रहेंगी, कुछ चीजें चेंज की रहेंगी, वो क्यों कैसे क्या, वो चीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और अपने इस बैकअप वाले में भी चेंज करो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ऐसे केसेस आए थे कि डेटा हमने अपने कंसल्टेंट को दे दिया, उन्होंने कुछ आगे पीछे चेंज करके रिटर्न फाइलिंग कर दिया और हो गया, लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एडिट नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जब रिटर्न फाइलिंग आप अप्रैल मई का करते हो, फिर जब 6 महीने बाद 12 महीने बाद जब ऑडिट स्टार्ट होती है, तो हमें याद नहीं रहता कि हमने इसका क्या किया था क्या नहीं किया था। और ऐसे केस में वो ट्रैक डाउन करना बहुत बहुत टफ वाला काम है। इस फेज से मैं कई बार गुजर चुका हूँ। यही चीज़ें मेरा मेन पर्पस है कि डेटा फाइलिंग करते वक्त आपको क्या डूज फॉलो करने हैं, क्या डोंट्स फॉलो करने हैं। रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है वो बता दिया मैंने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर फाइनेंशियल डेटा, यू शुड टेक केयर कि रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, डेटा हमें कैसे प्रिपेयर करके देना है। अगर आप डेटा अपने कंसल्टेंट को भी देते हो तो मैंने जो बैकअप बताया वो बैकअप प्रिपेयर कर लो और वो बैकअप ही डेटा आप अपने कंसल्टेंट को दे दो कि सर देखो ये डेटा है मेरा, ये बैकअप फाइल है, आप रिटर्न फाइल कर दो। और उसके साथ साथ में आप वो जेसॉन फाइल दे दो, उनको इजी पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग करने पे। अगर आप टैली का डेटा देते हो तो टैली का डेटा दे दो, बट टैली के डेटा में अगर वो कुछ चेंजेस करते, करेक्शन करते, तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो आपके लाइव टैली के डेटा में अपडेट होना चाहिए। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट अपना दिस सेशन, जिसमें हमने कंप्लीट डूज एंड डोंट्स विथ डिटेल इंफॉर्मेशन कि GSTR 1 फाइलिंग कैसे करना है, उसके क्या क्या इफ एंड बट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अमेंडमेंट क्या होता है, एंड कंप्लीट प्रोसेस क्या है GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग करने का, हमने डिटेल में डिस्कस किया। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। इन फ्यूचर, आज नहीं कल, आने वाले कभी भी टाइम में कभी भी कुछ भी क्वेरी होती है तो मैं और मेरी टीम ऑलवेज अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ भी क्वेरी है आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट के व्हाट्सअप नंबर पे, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को अटेंड करके रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो
मैं फर्दर ये बोलूँगा कि अगर कोई FAQ है तो FAQ यहाँ पे मैं अटेंड कर सकता हूँ। अगर FAQ अभी नहीं है तो मेरा नंबर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। कभी भी आपको FAQ याद आए तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू राइट मी ऑन मेल ID या फिर मेरे मोबाइल नंबर। आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। सो I would say thank you to all of you for attending such session. I hope so कि ये चीज़ आपको वर्थ लगी होंगी, आपको समझ में आई होंगी, और फर्दर क्वेरी के लिए तो मैं तो अवेलेबल हूँ। रही बात ओके क्वेरी व्हाट्सअप आया है मुझे अभी, सर GSTR 3B का सेशन, सर GSTR 3B का जो है अभी टाइम है। एक्चुअली GSTR 3B जो GSTR 1 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करना इज नॉट एन ईजी टास्क। उस केसेस में हमें डेटा प्रिपेयर करने बैकअप के साथ साथ में हमें हर एक फील्ड, चाहे वो सेल्स का होगा चाहे परचेज का होगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हर टेबल को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे 90 मिनट्स में कवर करते हैं मैक्सिमम, बट वो चीज़ वहाँ पे 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी हम उस पर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले GSTR 1 एटलीस्ट सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हम GSTR 3B में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। व्हाट्सएप पे ही एक और क्वेरी आई है, सर हमें सारा GST रिटर्न एक ही, हाँ अच्छा एक ही जगह पे, कहने का मतलब ये होगा कि GSTR 1 का रिटर्न GSTR 3B का रिटर्न एक ही जगह पे वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपका। GSTR 1 और GSTR 3B का रिटर्न आपको मैं वीडियो बना के डेफिनेटली दे दूंगा, जिसने जिसने अटेंड किया है। जिसने अटेंड नहीं किया है, जिन्होंने पे किया है, उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पेमेंट आपने किया है तो किसी और को ये वीडियो या फिर ये डेटा शेयर ना करें। दैट इज़ योर बेनिफिट के लिए आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, बट किसी और को शेयर ना करें, आउटसाइड सोर्स को शेयर ना करें। और सर टैली प्राइम का देखो सर कैसा है, टैली प्राइम जो है ना वो टैली का अपडेटेड वर्जन है, बट उतना खास मैं बोलूँ प्रैक्टिकल, बिकॉज मैं टैली का डेली यूज़ करता हूँ तो मुझे मेजर चेंजेस नज़र नहीं आए। लेकिन अगर आप टैली कभी भी, अगर आपको टैली पार्टनर बोलता है अपडेट करने के लिए, तो आप लॉन्च हुआ 9 नवंबर को, आप उसको अभी मत अपडेट करो, 1 महीना 1.5 महीने वेट कर लो। टैली प्राइम का भी नया वर्जन आएगा विद प्रॉपर रीजन के साथ, बिकॉज जो टैली का नया वर्जन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, नोट्स हैं जिसमें इश्यूज नोटेड हो रहे हैं, तो इसलिए वेट करो, 1-2 महीने वेट कर लो, इसका अपडेटेड वर्जन आएगा तो आप कर लो। या फिर अगर आपका टैली पार्टनर फोर्स करता है तो प्लीज़ आस्क कि से काम करो, टैली प्राइम जो है मेरा बैकअप में इंस्टॉल कर दो, बैकअप डेटा डाल दो उसमें, मैं टेस्टिंग कर लूँगा, अपना हाथ बैठा लूँगा उस पर, तो मैं आगे का टैली ERP9 से मूव करूँगा टैली प्राइम में। लेकिन मुझे टाइम दो, इमीडिएट बेसिस से मत करो, बिकॉज इमीडिएट बेसिस पे करोगे तो आपका डाउन टाइम बढ़ जाएगा, बिकॉज टैली प्राइम आपको देखने में, उसे कीबोर्ड समझने में, उसे काम समझने में टाइम जाएगा, प्लस आपका डेटा मैकेनिज्म वेरीफाई करने में टाइम जाएगा, उसमें आपने कुछ मॉड्यूल बनाया रहेगा, कॉस्ट उसका अपडेट करने में टाइम जाएगा, तो ऐसे आपका डाउन टाइम बढ़ सकता है। डायरेक्टली कभी भी आप अपडेट मत करो, टाइम लो, थोड़ा सा वेट करो इसके लिए। और अपडेट करने से पहले वेंडर से पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लो कि टैली प्राइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो उसका बेनिफिट क्या है वो रिटर्न में इन्फॉर्मेशन लिख के लो। अपने मॉड्यूल कस्टमाइजेशन मॉड्यूल ये सब चीज़ें भी उनसे वेरीफाई कर लो। ओके तो बाकी कोर्सेज, हाँ बाकी कोर्सेज भी अपने हैं, बाकी कोर्सेज भी अपने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिले कर दिया है। मैं आई एम बिकॉज आई एम द सिंगल पर्सन राइट नाउ जो पूरा का पूरा इसको एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें बनाना और इसको मॉडिफाई करना, ये आई एम राइट नाउ मैं ही अकेला हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ें मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर डिटेल जो डेटा जा रहा है वो प्रॉपर है, और वीडियो रिकॉर्ड करना इसके प्रॉपर तरीके से, अगर रिकॉर्डेड नहीं है वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। लाइव सेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेशन होता है तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, तो टाइम जाता है। हालांकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे बहुत सारे कोर्सेज पाइपलाइन में है, और तो कोर्सेज इन द सेंस खाली प्रोफेशनल टैली GST रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा क्या है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा हमारा जो कोर्सेज है वो है महाराष्ट्र बोर्ड के जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं, अकाउंट्स के यानी कि जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, उनका पूरा सब्जेक्ट वाइज हमने पूरा का पूरा कवर किया है, जहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर के पेपर सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन होंगे, लाइव सेशन नहीं होंगे उसके इसमें, कि अगर किसी को सीखना हुआ तो क्रैश कोर्स के तौर पे या फिर लाइफ टाइम के मतलब पूरा का पूरा एकेडमिक कोर्स के तौर पे उसको सीख सकता है। हालांकि उस कोर्स के लिए उसको कोई बड़ी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे कोचिंग क्लासेस में इंस्टीट्यूट में उसी सब्जेक्ट के लिए 7,000 8,000 10,000 पे करना पड़ता है।
यहाँ पे हमारा नॉमिनल फीस होगा, माइट भी होगा 1000 से लेके 1500 पर सब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट्स के लिए खाली इतना ही पे करना पूरे साल के लिए, और भी कुछ पे करने की जरूरत है। और यहाँ पे अनलिमिटेड जितना वो देखना चाहे देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सिमिलरली मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए FY बीकॉम सेकेंड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर बीकॉम के लिए भी एकेडमिक कोर्सेज यहाँ पे डाले जाएंगे। और साथ साथ में हमारा जो आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि MBA हो गया, या फिर आपका कह लो जर्नलिज्म हो गया, ये सब कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जो डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी से आप करना चाहो तो वो भी कोर्स हमारा टाइप कर रखा है हमने, वो भी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इनकम टैक्स, TDS, ये सब भी कोर्सेज हैं जो हमने पब्लिश करने हैं। बट सारी वीडियोस मेरे पास अगर आप बताओ तो कम से कम 200 GB के आसपास मेरे वीडियोस है, 200 GB। और वो 200 GB को एडिटिंग करना, वेरीफाई करना, कंटेंट प्रॉपर है या नहीं करना, वो मेरे लिए अकेला बहुत टफ होता है। बट मैं मैनेज करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम सारी चीज़ें प्रॉपर जाएँ। सो लेट्स क्लोज नाउ। अगर फर्दर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फ़ोन तो मुझे व्हाट्सअप करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जैसे ही अवेलेबल रहूँगा आपको टेक्स्ट कर लूँगा। फॉर अदर कोर्सेज एंड डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट विजिट कर लो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और बाकी चीज़ें तो मैं डेफिनेटली अपडेट करते रहूँगा। आप मेरा फेसबुक पेज, आप मेरा फेसबुक पेज हो गया, मेरा इंस्टाग्राम पेज हो गया, आप मेरा ट्विटर पेज हो गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करो। दैट इज़ मुझे फॉलो करो, नहीं कि समद एकेडमी को फॉलो करो। हम लोग डेफिनेटली अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने, हालांकि ये पहले ही कर लेना चाहिए था, बहुत पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को बड़ा करो, इसको बड़ा करते हैं। और सी इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड कि एक बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप बननी चाहिए कि अगर हम लोग हैं तो हम लोग को एक वर्थ होना चाहिए कि हमने कुछ सीखा है और इसके बाद से इसका हम कभी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इज सेकंड प्रायोरिटी, बट आर रिलेशन, आर बॉन्डिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सीखना समझना तो चलते रहेगा, लाइफ टाइम के लिए हम लोग अवेलेबल, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट तो हम बाद में भी कमा लेंगे, पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे। सो ये जो मेरा पैशन है, मैं पैशन के तौर पे कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा खुद का एक जॉब है जहाँ पे मैं अपना फुल टाइम जॉब करता हूँ। उसकी सैलरी मेरी इतनी अच्छी है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा मुझे पैशन फॉलो करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पैशन के तौर पे ये भी करता हूँ। सो लेट्स क्लोज नाउ। थैंक यू। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। आप मेरा वेबसाइट विजिट करते रहो, बहुत सारे सेशन फ्री एंड चार्जेबल दोनों आने वाले हैं। जहाँ पे लगेगा फ्री सिखाना तो वहाँ पे फ्री, जहाँ पे चार्जेबल होगा चार्जेबल। और बहुत सारे सेशन जो आने वाले हो मेरे CA की तरफ से भी होंगे, जो मेरा CA का ग्रुप है, वो लोग भी बहुत सारे सेशन लाने से, इनकम टैक्स हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी, वो लोग भी लेकर आने वाले हैं। तो वो आप एक बार पूरा सेटल डाउन हो जाता है तो उनके भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स क्लोज नाउ। थैंक यू एंड विश यू अगेन अ हैप्पी दिवाली।